Good morning to all of you students and welcome to the new chapter number 6, tissues. Before we start the chapter, let's come to see the topics which we have to cover in the whole chapter. Student, in this chapter, we have to read about the basic concepts of tissues and labor division, structure and functions of animals and plant tissues, only 4 types of tissues. Student, there is a vast things to know, but we will study in this chapter only 4 types of tissues: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissue, nervous tissue, meristematic and permanent tissues in plants, and structure of xylem and phloem. Student, in the first part, we will cover basic concept of tissues, meristematic and permanent tissues, and structure of xylem and phloem. So student, we have to cover these 8 topics in the whole chapter, and in the first part of the chapter we will discuss about the basic concepts of tissues and labor divisions, meristematic and permanent tissues in plants, and structure of xylem and phloems. Now students, let's come to see what is tissue. Now we are taking the example of human bodies. In our previous chapter, you have already known about the cell. Cell is the structural and functional unit of life. This is our basic fundamental structure of the organism. So student, you can see that there is the flow diagram. Cell, tissues, cell will join together and make the tissue, and tissue will make the organs, and organ will make any human body or any other organism. Students, in our previous chapter we have read about the unicellular and multicellular cells, organism. So student, what are the examples of the unicellular cells? The examples of unicellular cells are amoeba, paramecium, etc. So student, let's come to see one by one that in the unicellular organism, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out the movement, intake of foods, the respiration of gases, respiration and the excretion. But in student, in the unicellular organism, all the activities has been done by only one cell, which is necessary for a living being. And student, in the multicellular organism, let's come to see about the multicellular organism. In student, these organism, each specialized functions is taken up by a different group of cells. Student, group of cells, since these cells carry out only a particular functions, they do it very efficiently. Student, a group of cell will do a specific kind of work. Group of cells, like this is a cells. अगर ये cells हैं तो इनका ग्रुप मिल करके फिर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. स्टूडेंट, ये एक वन बाय वन दिस इज सेल, और जब वो ग्रुपिंग कर लेते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो एफिशिएंटली अपना काम, एफिशिएंटली यानी बहुत अच्छी तरह से, स्पेशलाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इन योर बुक द एग्जाम्पल इज गिवन द मसल सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो स्टूडेंट, human beings muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carries message. Blood flows of transport oxygens, food, hormones and waste materials and so on. Let's student come to see it again, that in human body there is muscle cells for the contraction and relaxation of the movement. You can see when you move your hands up and down, the muscles will relax and contract. And nerve cells to carry messages. Blood flows the transport oxygen, food,
hormones and waste materials. In plants, student, vascular tissues conduct food and water from one part to the other part. So, multicellular organism shows division of labor. What is division of labor, student? In multicellular organism, different part shows the division of labor. So, student, division of labor means cell specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells. Student, a cluster of cell will perform a special kind of work. This is called the labor division. That cluster of cell at a definite place in the body. This cluster of cells called a tissue. Student, be careful about that. See this sentence and understand it properly, that the group of cell is called the tissue, in arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all examples of tissues. So, the cluster of cells will make the tissue and this tissue will arranged and designed. इस तरह से ये अरेंज होते हैं और डिज़ाइंड होते हैं जिससे कि वो अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें. कुछ एग्जांपल्स इस यहाँ पर मेंशन हुए हैं स्टूडेंट्स. ब्लड, फ्लोएम्स एंड मसल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यू. सो स्टूडेंट, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. So this is not sufficient कि जो एक जैसे सेल्स हैं वो मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, पर उनका जो गोल होता है या जो उनका एम होता है वो एक पर्टिकुलर काम को करना होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना होता है. सो स्टूडेंट, here is question arises in the book and we should have to think about this question, that are plants and animals made of same type of tissues? क्या plants के और animals के जो tissues होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हमें इस बुक में मिलेगा. that student, there are noticeable differences between the two. यहाँ पर दोनों के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नोटिसेबल डिफरेंस होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो एक ही जगह होते हैं. दे डोंट मूव. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे हैव आर सपोर्टिव टिश्यू. उन्हें सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि पूरी लाइफ इन्हें एक ही जगह पर खड़े होना पड़ता है. तो दे आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड्स देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. मोस्ट ऑफ दीज सेल्स टिश्यूज़ आर डेड, since dead cells can provide mechanical strengths. So student, आप याद कीजिए, in our previous chapter we study about the Robert Hooke who discovered the cell first time in 1665 और उन्होंने कॉर्क सेल देखा था जो कि डेड सेल था. सो स्टूडेंट, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत से ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेड होते हैं और इसीलिए क्योंकि वो उन्हें सपोर्ट प्रदान करते हैं, ये सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं. सो स्टूडेंट, दे आर डेड एंड विच प्रोवाइड देम द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. नाउ लेट्स गो फर्दर. मोस्ट ऑफ these tissues are dead since they provide mechanical strength as easily as live one and needs less maintenance. And students, animals on the other hand moves around in search of food. Move around in the search of. Let's come to see the two main parts of the here you can see that the permanent tissues are two types. First is the simple and complex. Simple permanent tissue को further 3 parts में divide किया गया है. देखिए इसमें है parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And
जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसे हम देखते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है और दूसरा होता है जाइलम। हम इसे आगे के पोर्शन में डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें और भी कितने पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बोथ टिश्यूज़ एंड द ऑल द टिश्यूज़। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग इट अगेन एंड यू कैन टेक द screenshot of the dividation or the hierarchy of the plant cell so that you will make the notes and it will make easy to learn the topics and the portions. दैट इन दिस अगर ये सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ही ग्रोथ होती रहती है उनमें, तो उनमें कुछ ऐसी नेसेसरी या रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। तो एज द सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, वी हैव सीन इट इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द साइटोप्लाज्म विच इज़ द फ्लूइड ऑफ द सेल। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाइज होती हैं एंड दे लैक ऑफ वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक ऑफ वैक्यूल्स, है ना? इनमें वैक्यूल्स की संख्या कम क्यों होती है, ये आप सोचिए, उसको थिंक कीजिए एंड आई विल गिव द आंसर इन द फर्दर पार्ट। सो स्टूडेंट, लेट्स कम टू सी अबाउट द परमानेंट टिश्यू। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देख लिया और उनके जो है रीजन्स के बारे में भी देख लिया कि एपाइकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी एंड द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वन मोर थिंग आई हैव जस्ट फॉरगेट दैट इन दिस डायग्राम, दिस इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट आस्क इन एवरी ईयर टू राइट द नेम और द लेबल द डायग्राम। तो इसमें आपको स्टूडेंट ये वाला पोर्शन को आपके क्वेश्चन पेपर में ए करके डिनोट किया जाता है इस रीजन को, और इसे बी करके डिनोट किया जाता है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबल द रीजन मार्क्ड ए एंड बी इन द डायग्राम। सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको जस्ट क्या करना है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, दिस डायग्राम विल बी गिवन ऑलमोस्ट एंड यू हैव टू राइट द एपाइकल टिश्यू, intercalary and the lateral meristematic tissues, and it can be asked to draw the diagram. So you have to do the practice to draw the diagram of the location of the meristematic tissues. So इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से बनाना सीख जाइए, क्योंकि डायग्राम भी बनाना पूछ सकते हैं, और यदि कम मार्क्स में पूछेगा 1 और 2 मार्क्स में तो लेबल करने के लिए भी पूछ सकता है। तो आपको इन तीनों के नाम भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। सो स्टूडेंट, हम चलते हैं अब परमानेंट टिश्यू की तरफ कि ये परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। स्टूडेंट, नॉट वरी टू रिमेंबर, इट विल बी ईजी टू रिमेंबर फॉर ऑल ऑफ यू इफ़ यू आर लिसनिंग दिस लेसन वेरी केयरफुली। और आप बार बार इसे पॉज करके और ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आप बुक को भी रीड कीजिए अच्छी तरह से। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म हो गया, बन गया, तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। अब इनकी डिवाइडेशन की एबिलिटी ये लॉस कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू की तरफ ये बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट? जब कोई टिश्यू मेरिस्टेमेटिक के बाद में परमानेंसी की तरफ आती है तो इनकी जो डिवाइडेशन की टेंडेंसी है या एबिलिटी ऑफ डिवाइड है वो ख़त्म हो जाती है और वो धीरे धीरे परमानेंसी की तरफ चले जाती है। मतलब कि इनका एक स्पेशल वर्क हो जाता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ टास्क उन्हें कंप्लीट करना होता है। सो स्टूडेंट, cells of meristematic tissues differentiate to form
डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। अब स्टूडेंट हमें जो है वो फोकस करना है किसके तरफ, हमें फोकस करना है इनके जो है टाइप्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है परमानेंट टिश्यू को भी दो टाइप में बांटा गया था। एक तो था सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में था पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आप इस तरह से फ्लो डायग्राम बना करके याद करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दिस इज़ वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, सो इट विल बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आप बार बार इसे करेंगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हम अब पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले पढ़ेंगे सिंपल का, और सिंपल में भी 3 टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी दैट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो एक फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यूज़। दिस टिश्यूज़ इज पेरेन्काइमा। सबसे पहली टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की होती है वो होती है पेरेन्काइमा। अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यूज़, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विदिन थिन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल थिन होती है। याद कीजिए बच्चों, हमने जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपने देखा था कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इसे मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, एंड दे आर लाइव सेल्स। ये कैसे होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं, एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। ये जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा सटे हुए नहीं होते, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, है ना। सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यूज़। तो इन टिश्यूज़ के बीच में क्या होता है कि स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर द फूड। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये सपोर्ट प्रदान करता है और दूसरा वो फूड स्टोरिंग का काम करता है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स। स्टूडेंट इसके भी हम दो प्रकार जानते हैं, किसके, पेरेन्काइमा के। पेरेन्काइमा के दो टाइप्स होते हैं स्पेशल कैटेगरी में। एक तो होता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा देखिए, क्लोरोफिल अगर इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल है ना, तो आप देख सकते हैं क्लोरोफिल का क्या काम होता है, दिस इज द ग्रीन पिगमेंट एंड इट विल हेल्पफुल टू डू मेकिंग फूड, मीन्स फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, जब इनमें ग्रीन कलर होता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। स्टूडेंट देखिए, इसे फिर से हम लोग देखते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा बना है, मतलब क्लोरोफिल प्लस पेरेन्काइमा इज इक्वल टू क्लोरेन्काइमा। तो ये कौन सा टिश्यू है, क्लोरेन्काइमा, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन का काम करता है, क्लोरेन्काइमा। और स्टूडेंट एक अदर प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इन्हें हमेशा तैरना होता है, फ्लोट करना होता है ऊपर, तो इनमें ज़्यादा अगर ये हैवी होंगे टिश्यूज़ तो वो क्या हो जाएगा, उसमें सिंक हो सकता है, डूब सकता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं पेरेन्काइमा में, जो कि इन्हें क्या करती हैं, ब्यूएंसी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट, जो कि उन्हें फ्लोट होने के लिए कैपेसिटी देती हैं, तब इन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब इसमें एयर प्रेजेंट होती है तो इसे कहते हैं एरेन्काइमा, और जब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब हम इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा विल हेल्प टू मेक द फूड और पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड जो एरेन्काइमा होती है स्टूडेंट, तो वो जो एरेन्काइमा होती है वो क्या करती है स्टूडेंट, वो जो फ्लोट करने वाले प्लांट्स होते हैं या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रॉपरली फ्लोटिंग में सहायता करते हैं। सो मैं आई एम टेलिंग यू वंस अगेन दैट द पेरेन्काइमा जो होता है, पेरेन्काइमा आपने देखा पेरेन्काइमा, तो उसकी दो कैटेगरी हमने देखी, कैटेगरी तो नहीं पर ये अलग अलग रूप में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है क्लोरेन्काइमा, और दूसरा होता है स्टूडेंट एरेन्काइमा।
इसे आप फिर से देखिए, रीड कीजिए बुक, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा टिश्यू के बाद में स्टूडेंट हम लोग अगला देखते हैं और वो होता है कॉलेनकाइमा. स्टूडेंट चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. कॉलेनकाइमा, ये कॉलेनकाइमा क्या करता है, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है. जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में क्रीपर्स के बारे में और क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था. तो जो क्रीपर और क्लाइंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टनेस प्रदान करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है. वो कौन प्रदान करता है, वो प्रदान करता है कॉलेनकाइमा. स्टूडेंट अगला टाइप है परमानेंट टिश्यू का कॉलेनकाइमा. तो ये जो कॉलेनकाइमा होता है वो प्लांट्स को क्या प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है. एंड इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स. जैसे कि लीफ और स्टेम्स होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं होती है तो वो उसे एक तो बेंडिंग भी प्रदान करता है और वो इतनी स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है कि जिससे कि वो टूट ना जाए. अब अगली टिश्यू, लास्ट टिश्यू है परमानेंट टिश्यू की, और वो है स्क्लेरेन्काइमा. स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज sclerenchyma. Let's come to see about this. The another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which marks the plant hard and stiff. We have seen the husk of the coconut. आपने देखा होगा कोकोनट का जो हस्क होता है स्टूडेंट, वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रेंथन होता है. तो वो किस टिश्यू के द्वारा होता है, वो जो है वो स्क्लेरेन्काइमा के प्रेजेंस की वजह से होता है. ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर होता है कि जो कोकोनट का हस्क होता है वो उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है. तब आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है. सो स्टूडेंट वी हैव सा द प्लांट टिश्यूज़. पूरे प्लांट टिश्यूज़ को हमने देख लिया. आप ध्यान से फिर से एक बार रिकैपिचुलेशन में कर रही हूँ कि इसमें हमने 2 प्रकार के टिश्यूज़ देखे थे. लेट्स कम टू सी स्टूडेंट, वी हैव सी द 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़. फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने डायग्राम के द्वारा देख लिया था, एपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. और जो परमानेंट टिश्यूज़ थे उनका हमने एक प्रकार देखा है अभी, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. सिंपल परमानेंट टिश्यू में था पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द lesson, and we will see the further portion in the second part. Thank you and have a nice day.